Good afternoon, dear kids. In my previous video, we have done about the central nervous system, which consisted of brain and spinal cord. Today, we will be doing peripheral nervous system. You can also call it as PNS. Okay. Now, what does peripheral nervous system consist of? अगर आप पेरीफेरी वर्ड समझते हो तो पेरीफेरी इज ऑल दैट सराउंड जो इर्द गिर्द होता है उसको हम पेरीफेरी बोलते हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच कैरी इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा सपोर्ट किए हुए है उसके पेरीफेरी वाले नर्व्स. अगर रीढ़ की हड्डी में हम लोग बात करें तो बहुत सारे नर्व्स इर्द गिर्द फैले हुए हैं. So that entire nerves coming in and around the spinal cord and as well as brain you can call that will be called as peripheral nervous system. Now peripheral nervous system is further divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. We will first do somatic nervous system. Now what is somatic nervous system? Again it consists of two types of nerves, that is cranial nerves and spinal nerves. Try to understand. We are doing peripheral nervous system. Peripheral nervous system is divided into two, that is somatic and autonomic. Are you getting my point? We are doing somatic nervous system. Now somatic nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. My dear kids, what you mean by cranial nerves? Cranial nerves के जो आपके ब्रेन से इमर्ज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं cranial nerves. तो जो आपके ब्रेन से इमर्ज होती हैं वो कौन सी नर्व्स हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी होती हैं सेंसरी नर्व्स जो सेंसेशन देती हैं. जैसे ऑप्टिकल नर्व हो गया वो ब्रेन से इमर्ज होती है. जैसे आपका ऑयल फैक्ट्री मतलब आप नोज में स्मेल करते हो तो उसके न्यूरॉन्स उसके नर्व्स जो इमर्ज होते हैं वो ब्रेन के थ्रू होते हैं. देन यू हैव ऑडिटरी नर्व, then you have taste buds, those consist of nerves and neurons that are also emerging from brain. So these are all called as cranial nerves. Are you getting my point clear? So these are the cranial nerves. And what do you mean by spinal nerves? अब स्पाइनल नर्व्स, जैसे आपको पता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो 5 भागों में डिवाइडेड है. यू नो वेरी वेल, लंबर यू हैव, सैक्रल यू हैव, कॉक्सिक्स यू हैव अ नेक रीजन, ऐसे करके आपके 5 भागों में डिवाइडेड है. सो देर आर अराउंड 31 pairs of nerves coming out from your spine. तो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें से जो नर्व्स आती हैं ऐसी 31 pairs of nerves आपके रीढ़ की हड्डी में से आती हैं. Those are 8 pairs are coming from neck region, 8 pairs, neck 12 pairs from thorax, फिर उसके नीचे 5 pairs from lumbar, 5 pairs from sacral and 1 pair from coccyx. That डाउन पार्ट इज नोन एज कॉक्सिक्स. तो वहाँ से भी आती हैं 1 pair of nerve. So these all nerves which are coming from spinal cord, the different parts of spinal cord are known as spinal nerves. Are you clear with this? So this all entire nerves which are coming from spine and from brain as well, they are known as somatic nervous system. Clear? Okay, then we have another nervous system which is known as autonomic nervous system. Getting my point clear? ये peripheral nervous system का ही part है autonomic nervous system. Before we have done somatic nervous system, now we are doing autonomic nervous system. Autonomic nervous system, it can also be called as ANS. ठीक है. नाउ ये सिस्टम अब फिर से डिवाइडेड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. ठीक है, ये 2 में डिवाइडेड है. जैसे आपका प्रीवियसली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 2 में डिवाइडेड है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. सोमैटिक में आते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनॉमिक में आते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. ठीक है, अब देखेंगे कि सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है. हम ये तो समझते हैं कि ब्रेन नेक रीजन से जो कॉक्सियल रीजन तक जो भी नर्व्स हैं वो सभी काम करते हैं.
लेकिन इन नर्व्स में भी थोड़ा सा डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? जो आपके हेड रीजन, जो यहाँ पे आते हैं हेड, और थोड़े से आप नेक रीजन में देखोगे, और लास्ट सैक्रल या कॉक्सियल में आप देखोगे एक नर्व, ये सब काम करते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए, ठीक है। और ये बाकी जो नर्व्स हैं जो आपके स्पाइन से आते हैं नीचे की तरफ, दीज ऑल वर्क फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम ये बोल सकते हैं नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज यू कैन कॉल इट एज नेक रीजन से लेकर, नेक रीजन से लेकर नीचे तक हमारा जो वेस्ट रीजन है, वहाँ के जो भी नर्व्स हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर जो थोड़ा बहुत हेड रीजन पे है और थोड़ा बहुत नीचे एक दो नर्व यहाँ पे है, वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहलाती हैं। अब क्या करते हैं ये नर्व्स? जैसे सिंपैथेटिक नर्व्स हैं ये आपको ये तो पता है कि एड्रेनालाइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हम लोग ने पढ़ा है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें से एक सिक्रीशन कंटिन्यूसली आता है, दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन क्या करता है? वो इंसान को फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में डालता है। कैसे? कोई डर की सिचुएशन होती है, या तो करो या तो मरो वाली सिचुएशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कंटिन्यूसली गाइडेड बाय एड्रेनालाइन, जैसे इसको एड्रेनालाइन सीक्रेशन मिलेगा ये वर्क करेगा उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लासरूम में अचानक से टीचर आ जाती है और अनाउंस करती है कि टुडे यू हैव मैथ्स टेस्ट एंड दीज आर द चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं आते, तो आपका कैसे हो जाएगा हाल? और वो कंपलसरी टेस्ट है, कॉपिंग का चांस नहीं है, कुछ भी चांस नहीं है, करेंगे क्या फिर? तो क्या होता है उस समय? हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती हैं, सलाइवा बिल्कुल अपना मुंह सूख जाता है, हाथों में पसीने आ जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज ऑल आर सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब ये एक्चुअली कैसे आया? तो ये एड्रिनल ग्लैंड ने सीक्रेशन किया और आपके नर्व्स को एक्टिवेट किया, स्टिमुलस दिया, डर वाला स्टिमुलस दिया। तो वो स्टिमुलस ने आपके हाथों के स्किन में पसीना छोड़ना शुरू किया, आपकी हार्ट बीट को बहुत ही ये कर दिया, फास्ट कर दिया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये सब एड्रिनल ने किया, लेकिन किसके थ्रू किया? उन नर्व्स को हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। गेटिंग माई पॉइंट? उन नर्व्स के थ्रू आपको ये सब हुआ। जैसे आप मुंह सूखना, सलाइवा डिक्रीज हो गया। अचानक से सलाइवा कैसे डिक्रीज हो गया? तो कोई ना कोई तो स्टिमुलस आया है, कोई ना कोई तो सिक्रीशन आया है, जिसने जो हमारे नर्व्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड के जो नर्व्स हैं उनको सिकुड़ दिया है, उनमें से सलाइवा हो ही नहीं रहा है, इसलिए मेरा मुंह सूख गया जैसे ही मैंने टीचर को देखा। तो गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सब जो भी हम लोग के सिम्टम्स हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और उसको गाइड करने वाला मेन एजेंट कौन है? एड्रेनालाइन सीक्रेशन। गेटिंग माई पॉइंट? चलो ये सब चीज़ें तो हो गई, जैसे टीचर आई, अनाउंस किया, मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, मेरा मुंह सूखने लगा, मेरे हाथों में से पसीना आने लगा। क्या ये सिचुएशन फॉर एवर लाइफ लॉन्ग रहेगी? नहीं, फ्यू सेकेंड्स के बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। चाहे टेस्ट तो होनी ही है, मैथ्स की टेस्ट तो होनी ही है, टीचर ने अनाउंस कर ही दिया है, लेकिन वो सिचुएशन जो मेरी घबराहट थी वो क्लास के 2 घंटे का 2 घंटे नहीं चलती है, 10 मिनट के बाद फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो नॉर्मलनेस कहाँ से आती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो चीज़ करता है उसके ऑपोजिट चीज़ आपकी करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्यों करता है? ताकि आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? सो सिंपैथेटिक नर्व प्रिपेयर फॉर योर बॉडी फॉर सम वायलेंट एक्शन, seeing the abnormal condition. Parasympathetic nerves they re-establish your normal conditions. Getting my point? After the violent action is done, आप किसी चीज़ से घबरा रहे हो, वो घबराहट वाली चीज़ नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद आपकी बॉडी भी नॉर्मलाइज होने लगती है।
वो घबराहट वाली चीज़ हो गई, उसके बाद आपकी बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है। तो वो नॉर्मल करने के लिए कौन वर्क करता है? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सो वी कॉल इट एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो दे डू द ऑपोजिट फंक्शंस बट दे वर्क टुगेदर। अगर सिंपैथेटिक ने वर्क किया तो पैरासिम्पैथेटिक को वर्क करना ही पड़ेगा। अगर हाथों में से पसीने छूटना शुरू हुआ है तो हाथों को फिर से नॉर्मल करने का जवाबदारी ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के ऊपर आ जाता है। जैसे ही फॉर एग्जांपल आप धूप में जाते हो, गेटिंग माई पॉइंट, तो आप धूप में गए या आप अंधेरे में आए एकदम से, तो आपके प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यस, दोनों रिवर्स सिचुएशन होती है। डायलेट हो जाएंगे तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट भी करना है ना, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए फिर कौन काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल डर के मारे मेरे पेट में ना अजीब से बटरफ्लाइज दौड़ते हैं, तो व्हाट दैट बटरफ्लाइज आर एक्चुअली, उस वक्त आपको भूख लगती है क्या? जब आपकी टीचर बोलती है कि आपका टेस्ट है आज मैथ्स का, अचानक से अनाउंस करती है, तो आपको भूख नहीं लगेगी। उस वक्त क्या हो जाएगा? द एंटायर सिस्टम विल इनहेबिट्स मतलब पूरा पेरिस्टालिसिस सिस्टम, इनहेबिट मतलब कि वो शांत हो जाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती। अगर मुंह में कुछ डाला भी तो वो अंदर भी नहीं जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? वो डर के मारे। तो ये क्या हमेशा के लिए होगा? नहीं। जैसे ही वो सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आपकी बॉडी भी आपको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, तो वो जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है वो कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो बिगाड़ने की कोशिश करती है वो कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट्स द रीजन वी कॉल कि हम हमेशा अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो बाय स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग। दैट्स द रीज़न आई कीप सेइंग। आई डोंट नो आपने मुझे एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं अपने प्रीवियस वाले क्लास में जब भी मेरे 10th बोर्ड रहते थे, जब भी वो एग्ज़ाम्स लिखते थे, टेस्ट लिखते थे मेरे पास, तो आई यूज़ टू टेल देम प्लीज़ टेक लॉन्ग ब्रीदिंग्स, take long breath so that your parasympathetic nervous system works, so that you do not have any fear. Getting my point? अगर पेपर देखकर आपको फियर लगता भी है तो वो फियर भाग जाता है because of strong parasympathetic nervous system. Getting my point clear? Okay. ओके, देन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है इज एन ऑटोमेटिक क्विक इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी। इनवॉलेंट्री आपके हाथ में नहीं है, वॉलेंट्री चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। सो ऑल रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंट्री। इन माई लास्ट वीडियो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक हॉट आयरन को टच किया है, तो क्या उसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं वहाँ से हाथ हटाऊँ या नहीं? नहीं, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय क्या होगा? वो एक्शन आप हाथ ऑटोमेटिकली हटा दोगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स। इनवॉलेंट्री, ब्रेन को इन्वॉल्व करना ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आपका मैसेज आ जाएगा कि भाई हाथ हटाओ। गेटिंग माई पॉइंट? सो दोज आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सेस। ओके, जैसे मैंने कहा था रिफ्लेक्सेस आपके दो टाइप्स के हमारे एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन विच आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सेस एंड वॉलेंट्री एक्शन जो आप डेलिबरेटली परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री एक्शंस में आपका थॉट प्रोसेस, दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बट वॉलेंट्री में आपको थॉट प्रोसेस, दिमाग की बहुत ज़रूरत है। सेकेंड, इनवॉलेंट्री एक्शन आपके सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं। आपने हॉट आयरन से हाथ हटा दिया तो ये आपका सेल्फ प्रोटेक्शन है यार, तो दिस इज सेल्फ प्रोटेक्शन। लेकिन वॉलेंट्री एक्शन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेबल से रिमोट कंट्रोल उठाया, ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, ये इनवॉलेंट्री नहीं है। ये विलिंगली मैंने अपना हाथ लिया, रिमोट कंट्रोल लिया, और उसका गोल क्या है? टीवी ऑन करना। तो ये है हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। सो वॉलेंट्री एक्शंस आर परफॉर्म्ड टू फुलफिल सम गोल्स, बट इनवॉलेंट्री एक्शन आपका प्रोटेक्टिव एक्शंस हैं यार। ठीक है, उसके बाद commands originate mostly in the spinal cord and autonomic nervous system and a few in the brain as well. जैसे मैंने कहा था reflexes immediate action, brain is actually not involved, spinal cord के थ्रू ही हमारा हो जाता है commanding। उसके बाद यहाँ पे brain is involved। Getting my point? And next is involved muscles as well as glands। मैंने कहा था reflexes involuntary actions आपके ज़्यादा एड्रेनलाइन ग्लैंड के थ्रू आपके गाइड किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ से कुछ रिलीज़ हुआ और आपके बॉडी ने इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करना शुरू किया।
ठीक है। बट हियर इन वॉलेंट्री एक्शन इट इन्वॉल्व्स ओनली मसल्स, नो ग्लैंड। ग्लैंड का कोई रीज़न ही नहीं है। मेरे को टीवी ऑन करना है, उसमें कौन सा ग्लैंड मुझे बताने वाला है, कौन सा रिलीज होने वाला है दिमाग में कि भाई टीवी ऑन करो? नो, दिस इज माई विलिंग एक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज, दैट इन्वॉल्व्स ओनली मसल्स। क्लियर? ओके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके ओके ओके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टिमुलस क्या है। अब जैसे ही मैंने बात करी, एक पिन मुझे अंगूठे पे लगी, तो दैट पिन विल प्ले अ रोल ऑफ स्टिमुलस। जो भी चीज़ आपके इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ आपको एक्शन परफॉर्म करने पे मजबूर कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। तो क्या वो सिर्फ फिजिकल चीज़ होगी? नहीं, वो केमिकल चीज़ भी हो सकती है। जैसे आप धूप में जाते हो तो लाइट एनर्जी आपके आँखों को डायलेट कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, आप अंधेरे में आते हो तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी, ठीक है। थर्मल, हाथ, जैसे ही ठंडी का सीज़न आया तो मेरे तो गूज फ्लैश आने शुरू हो जाते हैं। गूज फ्लैश आपको समझता है, वो बाल खड़े हो जाते हैं हाथों पैरों के। तो क्या खुद जाके आप इरेक्टर मसल को इरेक्ट करते हो क्या स्किन के? नहीं, तो वो खुद ही हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? बिकॉज उनको स्टिमुलस मिला, उनको ठंडी मिली स्किन को। गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। एनी एजेंट, any agent or an environmental change which initiates a response in the body, जिस भी चेंज को आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको हम लोग बोलेंगे स्टिमुलस। क्लियर? ओके, जहाँ पे हम लोग ने रिफ्लेक्सेस किए थे, मैं सॉरी, रिफ्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस हम ना करना भूल गए, तो हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस में क्या होगा? नेचुरल कंडीशन, नेचुरल रिफ्लेक्स, आपके बॉडी को स्टिमुलस मिला। मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, आपकी बॉडी परफॉर्म करती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल माय आइज़ आर ब्लिंकिंग, ठीक है, तो ये मेरा इनवॉलेंट्री एक्शन है, मैं तो परफॉर्म नहीं करती हूँ। खाना खाया, पेरिस्टाल्सिस, ये मेरा इनवॉलेंट्री एक्शन है। फिर मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ी सी डस्ट मेरे नाक में गई तो मैंने स्नीजिंग किया, मैंने कॉफिंग किया, ये मेरा इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो दीज ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन विल बी कॉल्ड एज नेचुरल रिफ्लेक्सेस, नेचुरल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इनबॉर्न, कोई सिखाता नहीं है हमको स्नीज करना, कफ करना, ब्लिंक करना आँखों का, कोई भी हमको सिखाता नहीं है, दिस इज इनबॉर्न। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आर कंडीशन रिफ्लेक्सेस? कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ध्यान देना, अब कंडीशन रिफ्लेक्स में ये होता है कि आपको एक कंडीशन मिल गई इसलिए आप वो एक्शन परफॉर्म करते ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। द मोमेंट आई सिट ऑन माई टू व्हीलर, मेरा एक थंब हॉर्न की तरफ चला जाता है। हॉर्न बजाती नहीं हूँ लेकिन हॉर्न को टच करके रखती हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, व्हाट काइंड ऑफ फियर आई हैव, कि जैसे ही कोई आ जाएगा तो मैं हॉर्न बजाऊंगी। बट दो एवरीवन कीप सेइंग मी कि अरे बाबा वो थंब अपने हॉर्न में से निकालो, हॉर्न बजाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, और मैं बजाती भी नहीं हूँ हॉर्न, बट स्टिल माई थंब इज़ ऑलवेज ऑन द हॉर्न। सो ये मेरा क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कंडीशनड है कि भाई कोई आ जाएगा तो मैं हॉर्न बजाऊंगी, कोई आ जाएगा तो मैं हॉर्न बजाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरा है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत जनों को आदत पड़ जाती है कि हम लोग व्हीकल पे हैं, लेफ्ट साइड लिया तो अपना वो इंडिकेटर भी ऑन करते हैं गाड़ी का, एज वेल एज हाथ भी बाहर निकालते हैं। अरे भाई तुमने इंडिकेटर ऑन किया है तो हाथ काय को बाहर निकाल रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? तो हाथ बाहर निकालना टर्न पे, ये कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया, मतलब आपको वो कंडीशन आ जाती है और वो आदत पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक्स में दिया गया है, अगर एक डॉग के सामने, डॉग नॉर्मली सलाइवा सिक्रीट इतना ज़्यादा सलाइवेशन नहीं करता है कंटिन्यूसली, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने खाना रख दोगे तो वो सलाइवेशन करता है, उसको वो चीज़ की स्मेल और जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो वो सलाइवा, वो तो ह्यूमन बीइंग भी करता है यार। हमारे आगे भी पिज्ज़ा का प्लेट रख दो, हमारे भी मुंह से लाड़ बहती है, राइट और नॉट? सो सेम हैपन्स विद द डॉग्स। अब डॉग के सामने आपने प्लेट रख दी, डॉग, अच्छा फॉर एग्जांपल डॉग के सामने आपने बेल बजा दी, कि वो सलाइवेशन करेगा क्या? नहीं करेगा, सिर्फ बेल पे नहीं करेगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल बेल के साथ आपने खाना भी रख दिया तो उसके मुंह से लाड़ टपकना शुरू कि खाना आ गया। अभी नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ दिन आप करके देखो, बेल के साथ खाना, बेल के साथ खाना, तो डॉग आपका सलाइवा खुद ही सीक्रेट करेगा कि मेरा खाना आ गया। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे करो, कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ के बाद, उसको खाने की प्लेट मत दो, सिर्फ बेल बजाओ, तो वो बेल के बजने से भी सलाइवा सीक्रेट करेगा, सलाइवेशन होगा उसको। क्यों? वो कंडीशन रिफ्लेक्स कि मुझे खाना मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? तो ये चीज़ें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कंडीशन के हिसाब से रिफ्लेक्स होना, चाहे वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, हम नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन वो कंडीशन ऐसे आ गई, मेरे आगे पिज्ज़ा आ जाता है तो यार कंट्रोल करके भी फिर भी सलाइवा मुंह में आ जाता है, मुंह में पानी आना, हिंदी में मुहावरा है मुंह में पानी आना, तो कैसे आ जाता है? तो ये सलाइवेशन क्यों होता है? दैट इज अगेन रिफ्लेक्स, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, बट दैट इज कंडीशन। अगर पिज्ज़ा की प्लेट नहीं आएगी तो क्या मुंह में से पानी आने वाला है? करेला आ गया तो मुंह में से पानी आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव, आप डिफ्रेंशिएट देख लोगे नेचुरल एंड कंडीशन रिफ्लेक्स, इट इज़ वेरी इजी, मैंने समझा दिया, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग ने उस दिन डिस्कस किया था कि अगर एक स्टिमुलस आ रहा है तो स्टिमुलस, ये मेरी फिंगर है, ये कैंडल है और ये मेरी फिंगर है, ठीक है? तो ये फिंगर ने मेरी टच कर दिया कैंडल को। जैसे ही कैंडल को टच किया, अब सुनो मेरी बात, दिस विल बी कॉल्ड एज स्टिमुलस, दिस विल बी कॉल्ड एज रिसेप्टर, जिसने रिसीव किया इम्पल्स को। अब यहाँ से एक नर्व गई, फास्ट गई, रीढ़ की हड्डी के पास गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई नर्व, उसको बताने, क्या बताने? कि मुझे एक हॉट टच हुआ है, हीट आई है मेरे सेंसरी नर्व में। फिर स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके फिर इसी नर्व के थ्रू मसल को मैसेज भेजेगा कि फिंगर हटाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक आर्क बन गया, आर्क, ARK, ओ सॉरी, सी व्हाट आई एम सेइंग, ARK, ओ माय गॉड, ARC, आर्क बन गया। कैसा रिफ्लेक्स आर्क बना? ये रिफ्लेक्स आर्क बन गया कि स्टिमुलस आया, रिसेप्टर में आया, रिसेप्टर ने स्पाइनल को मैसेज डाला, स्पाइनल ने फिर इफेक्टर को मैसेज डाला और फाइनली रिस्पॉन्स हुआ। सो ये एक आर्क बन गया। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने रिसेप्टर जो रिसीव करता है, आपको गरम लगा फिंगर पे ना, तो फिंगर ने रिसीव किया ना, तो फिंगर की स्किन कहलाएगी रिसेप्टर। उसने इम्पल्स डाला स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेस किया, एसोसिएशन न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को डाला मैसेज कि भाई वहाँ से हाथ उठाओ। सो दैट मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर कौन कहलाएगा? अरे भाई फिंगर का वही पार्ट इफेक्टर भी कहलाएगा, फिंगर इफेक्टर भी कहलाएगी, लेकिन फिंगर की मसल इफेक्टर कहलाएगी। जबकि रिसेप्टर कौन था? फिंगर की स्किन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिंगर की स्किन ने रिसीव किया। इफेक्टर कौन था? फिंगर की मसल ने, जिसने फिंगर को वहाँ से हटाया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और रिस्पॉन्स क्या हुआ? फिंगर का हटना एज अ रिस्पॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो विच थिंग्स आर इन्वॉल्व हियर? Which things are involved here? You have a stimulus, you have a receptor, फिर जाएगा मैसेज, ब्रेन, या सॉरी ब्रेन को मत इन्वॉल्व करो, चलेगा। अगर सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है तो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करो, कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग उसमें ब्रेन को इन्वॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पे आप स्पाइनल कॉर्ड भी लिख सकते हो। फिर जाएगा मैसेज इफेक्टर के पास और फिर आएगा रिस्पॉन्स। रिसेप्टर, स्टिमुलस आया, जैसे हमारा कैंडल, ये स्टिमुलस हो गया। रिसेप्टर हमारी स्किन रिसेप्टर हो गई, और किसके थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू इसने मैसेज भेजा। किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? मोटर न्यूरॉन को मैसेज डाला। किसको क्या करने के लिए? इफेक्टर। इफेक्टर कौन है? आप लिख सकते हो मसल इन हैंड। what is the response? To move your hand. Moving your hand is the response. Are you getting my point? Very clear. तो ये जो पूरा गोल चक्रा बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। Are you getting my point clear? ठीक है? ओके यार, मुझे समझ में भी नहीं आता तुम लोगों को कितना समझता है। Okay, anyways, you have to read your chapter as well, and then if you have any doubt, you can put it up. Okay? God bless.